So hello everyone, welcome back to my channel Smarties for you guys. So today we are moving forward to the gas laws. As in my previous video we did looked up on the states of matter and everything. So okay, let's get with it. So yeah, gas laws. So what do you think, what does laws are referred to and everything? You guys have any idea? Please, yes. So just get it into your minds. So a law is something which describe or something that describe or give description about something to us, right? So laws are something, according to the O-level chemistry, examiner can go and ask you that describe. If he asks you like describe, then you guys just going to give the description about something, but you're not going to tell the reason. And if he asks us about like describe and why, then you are going to ask, give us the reason and describe and explain. If you add some explain into something, then you're like you're gonna give the reason, and we will be studying the reason soon. So whatsoever we are learning right now, so please keep high hopes with me. So let's go with it. We have definitely 4 laws of gases. In our book we have been given 2 in the first chapter, but I think so we should like study of like far apart, because in next few chapters we are going to look into it. Yeah, 4 laws of gases. Oh my god. Okay, so the first law is Boyle's law. Boyle's. It's not so important that you guys need to remember the word or the person who just got the law, the name of the law. It's just we remember it these days. Okay, so the Boyle's laws somehow gives us this equation. I will like write this equation. You guys might have seen this equation if you guys have like, if you are math students or any math, like yeah, we have seen these. Like P, it's P equals to pressure. P means pressure. V is here volume. I hope it's clear. So Boyle's law actually tells us that if we will increase the pressure, ओके वी विल इंक्रीज द प्रेशर, ठीक है, तो हमारे पास वॉल्यूम कम होगा, आवर वॉल्यूम विल डिक्रीज. एंड इफ वी विल इंक्रीज द प्रेशर, I mean sorry, if we will decrease the pressure, our volume will increase. Let me just go with it once again. I mean that if I will increase the pressure, my volume will decrease. If I decrease the pressure, my volume will increase. So you guys can see the ultimate what do you think, what do we say that, like the things, I don't know, remember the relationship, right? So the relationship of pressure and volume, these cases, right? So probably you guys have learned in the maths that we have inversely proportional and the directly proportional. So here we say, and if we come into the maths, so we say that pressure is inversely proportional to the volume, and that's what this equation tells us. Because अब जब भी हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो हमारा वॉल्यूम कम होता है, या तो प्रेशर कम करते हैं तो हमारा वॉल्यूम बढ़ जाता है. ये चीज़ आ जाए तो सबसे पहला गैस का लॉ यही है. सो नाउ व्हाट हमने जो भी पढ़ा, और whatsoever told you guys, probably most of the students might be in confusion, like what's happening, I don't know. Here I'm going to give you a great example, because it did took me a lot to even remember it. So let's go with an example. For instance, I'm going to take a balloon. ठीक है, मैंने एक balloon ले लेना है. I have taken a balloon. Don't judge my drawing, I'm not so good at that. So here we have a balloon. Yeah, so if I look into this balloon, what is the position of this balloon right now? Is it having a great volume? Volume क्या हो गया? Space occupied, right? अगर इसके अंदर मैं देखूँ तो इसने कितनी space occupy की हुई है? ठीक है, इसने occupy की हुई है a good amount of space. पर इसके ऊपर कोई pressure डाल रहा है?
ठीक है, इसके ऊपर कोई प्रेशर है नहीं, इसके अभी हमने कोई इन्वायरमेंटल प्रेशर तो अलग बात है, पर हमने अपने आप से नहीं लगाया कोई प्रेशर। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि हमारा वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा है और हमारा प्रेशर यहाँ पे कम है। आई होप सो दिस इज़ क्लियर टू यू गाइज। देन मैंने एक और, ये हमारे पास इनिशियल स्टेज था, मतलब ये चीज़ दी थी जो हमने पहले देखी। देन फिर हमने ये चीज़ देखी कि मेरे पास सेम बलून है पर वो थोड़ा ऐसे हुआ हुआ है और उस पर एक हाथ है। हम जैसे बलून को हाथ से स्क्विश नहीं करते, वैसे किसी बंदे ने उस बलून को स्क्विश किया हुआ है। तो क्या हुआ, यहाँ पे क्या बढ़ गया, यहाँ पे प्रेशर दिया हमने, बलून को प्रेशर दे दिया। ठीक है, तो बलून पहले ऐसा फ्लोटेड था, अब वो फ्लोटेड नहीं रहा। ठीक है, तो बलून के अंदर वॉल्यूम जो है वो कम हो गया और प्रेशर हमने दे दिया तो प्रेशर ज़्यादा हो गया। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गई। तो हमारे पास अब बलून के अंदर क्या थी, हवा थी। ठीक है, अब बलून को, बलून क्या है, हवा। जैसे कि हमने अब इसमें क्या बता रहे हैं कि गैस को अगर हम लोग, कोई भी गैस है, ठीक है, उसको अगर हम प्रेशर देंगे, ठीक है, तो हमारा वॉल्यूम कम हो जाएगा। अगर प्रेशर कम देंगे, ठीक है, तो हमारा वॉल्यूम, क्या बोल रही हूँ मैं, अगर प्रेशर देंगे, अगर प्रेशर दिया हमने तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, अगर हम प्रेशर नहीं देंगे तो हमारा वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। ये चीज़ बता रहा है वो गैस के हिसाब से। उसके बाद हमारे पास एक और थ्योरी आती है, P1 इक्वल्स टू V1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू V2। अब P1 V2 इक्वल्स टू P1 P2 एवरीथिंग, ये भी जो भी चीज़ है मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें ये बता रहा है कि P1 V1, तो जैसे कि ये स्टेज हमने यहाँ पे देखा, अभी स्टेज पे हमने देखा, ये जो पहला स्टेज हमने अभी किया था, इसमें हमारे पास वॉल्यूम कम ज़्यादा था और प्रेशर हमारे पास कम था। तो इसको मैं ले लेती हूँ P1 एंड P2, P1 नहीं V1 एंड P1 ले लेती हूँ मैं, जो हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, अब मैं इसको एक वैल्यू भी दे देती हूँ, इन दोनों को एक वैल्यू दे देती हूँ। इसमें क्या चीज़ आई हमारे पास, इसमें बता रहा है कि P1 मतलब प्रेशर नंबर 1 एंड वॉल्यूम नंबर 1 इक्वल करेगा प्रेशर नंबर 2 और प्रेशर नंबर 2 से। ये एक इक्वेशन है। अब मैंने आपको पहले क्या, आपको बस ये ध्यान रखना है, बिकॉज दे आर फर्दर स्टडीज, आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन यू सम फर्दर स्टडीज़। हमारे पास यहाँ पे हमें याद रखना है कि बॉयल्स लॉ ये बोलता है कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो हमारे पास वॉल्यूम कम होगा, अगर प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। बस इतनी चीज़ें याद रखनी है। बट अगर मैथमेटिक्स के अंदर जाएँ तो हमें ये चीज़ बताई जाती है कि P1 एंड B1 इक्वल्स टू P2 एंड V2। अब ये कैसे, आई एम गिविंग यू एग्जांपल। फॉर इंस्टेंस हमारे पास अभी जो वॉल्यूम है, ठीक है, उसका वॉल्यूम 20 है एंड प्रेशर जो है उसका, प्रेशर 1 जो है वो 30 है। ठीक है, नहीं मैं 40 रख देते हैं, आई हैव गिवन दिस लाइक 40। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेंगे, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा आ रहा है और वॉल्यूम कम है। ठीक है, तो ये मेरा पहला इनिशियल स्टेज आ गया है। ये मेरा क्या आ गया, ये इनिशियल स्टेज की वैल्यू है। अब उसके बाद इनिशियल स्टेज ख़त्म हो रहा है तो मैंने दूसरा स्टेज निकाला जिसमें मैंने V2 रखा एंड P2 रखा। इन दिस P2 क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे कम था तो यहाँ पे दूसरे स्टेज में वॉल्यूम, अब यहाँ पे क्या हुआ कि वॉल्यूम कम है और प्रेशर ज़्यादा है। तो मतलब मैंने बलून, इमेजिन करो एक बलून है, उसको मैंने 40 जितना भी क्या होता है 14 गुना मैंने उसके क्या किया है, मैंने उसे प्रेशर दिया हुआ है, उसका वॉल्यूम 20 हो गया है। तो यहाँ पे जो सेकंड सिचुएशन होगी उसमें मैंने उसको वॉल्यूम ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको कम प्रेशर देना है। यहाँ पे मैंने उसको प्रेशर दे दिया है 20 एंड यहाँ पे मैंने उसे, अगर जब मैंने उसको प्रेशर 20 दिया तो अंदर का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जो मैंने वॉल्यूम रख दिया 40। ठीक है, तो अब हमारे पास ये इक्वेशन आई थी कि P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, राइट। तो P1 एंड V1 की वैल्यू क्या है 40 इक्वल्स टू 20 एंड P2 V2 इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई बाय 40। ठीक है, तो हमारे पास 0, लाइक आई स्टक एट इट, 0 0 0 2 4 हाँ यही आना था 0 एंड 4 2 8। तो हमारे पास 800 यहाँ पे आया है, यहाँ पे भी 800 ही आएगा क्योंकि 20 × 40।
तो ये इक्वेशन बस ये क्लियर करता है, ये बंदा हमें बस मैथमेटिक्स ना हमारी इक्वेशन को ठीक करने के लिए, मतलब हमें बताने के लिए ओके हम ठीक हैं वो बताया। तो ये जो बॉयल्स का लॉ है, बॉयल्स ने हमें जो लॉ दिया है हमें ये बता रहा है कि अच्छा भाई ये जो बंदा था इसने इक्वेशन में बिल्कुल ठीक थी, इसने हमें अच्छा लॉ दिया है, इसने हमें सही लॉ दिया है। तो दिस फर्स्ट लॉ ओनली टेल्स अस अबाउट दैट कि प्रेशर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा। दैट्स इट। एंड आई हैव अनदर एग्जांपल फॉर यू गाइस फॉर दिस। I think so I should move into that or not. I don't know. So okay, moving into the another example. Let's move कि हमारे पास के you have a sea here और ये sea है, ये ऊपर वाले waves हैं, ये नीचे की waves हैं और नीचे बहुत डेप्थ में है। हमारे पास एक यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर इंस्टेंस आप सोचो कि यू आर इन अ स्विमिंग पूल एंड आपने अपनी ब्रेथ लिया तो जब आप पानी के अंदर होते हैं तो ब्रेथ का हमारे पास यूँ गोले गोले बन जाता है, राइट। सो यहाँ पे ऐसे हमारे पास जो हमारी ब्रेथ होती है वो पानी की फॉर्म में आती है, समथिंग लाइक आई रिमेंबर द नेम। सो उनमें से एक जो है वो यहाँ पे है, आई डोंट नो क्या बोलेंगे इसे, ड्रॉपलेट बोलेंगे या आई डोंट थिंक सो, सांस आपकी समथिंग लाइक दैट। अब मैंने इसका वॉल्यूम देखा, यहाँ पे मैंने इसका वॉल्यूम दे दिया 20 सेंटीमीटर क्यूब और यहाँ पे प्रेशर कितना था, नीचे वाली वेव्स के अंदर प्रेशर था 1000 पैस्कल्स, जो डेप्थ वगैरह हुआ था उसका यूनिट होता है पैस्कल्स, ठीक है, के पैस्कल्स, और पी फॉर प्रेशर और के फॉर पैस्कल्स, ठीक है। एंड ऊपर था 100 अब पैस्कल्स, ठीक है, ऊपर प्रेशर 100 था। अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ आती है दिमाग में, ठीक है, तो यहाँ पर जब हमारे पास एक ड्रॉपलेट था, इसका वॉल्यूम जब नीचे था वो, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम कितना था 20 था और प्रेशर हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा था। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी, हमारे पास ये चीज़ आएगी, ये क्या है, ये भी गैस ही है ना, O2 है ना, ये सांस है हमारी, जैसे CO2 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम कम है, क्यों कम है, बिकॉज हमारे पास प्रेशर ज़्यादा है, 1000 पैस्कल्स हमारा है प्रेशर एंड हमारे पास वॉल्यूम कम है हमारा। उसके बाद अगर हमारा यही सेम अगर मेरा ड्रॉपलेट ऊपर जाया, ठीक है, ऊपर गया, तो यहाँ पे उसका वॉल्यूम क्या होगा, ये चीज़ हमें ढूंढनी है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कम है एज़ कम्पेयर टू दिस एंड एज़ कम्पेयर टू दैट, ठीक है। तो हमारे पास एक और इक्वेशन आती है मैथ के अंदर, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V/1/V। वैसे ही अगर मैं लिखूँ P इक्वल्स टू K एंड V, के क्या होती है, कांस्टेंट चीज़ होती है, हमने ये पढ़ा है, ठीक है, ये चीज़ हमारे पास कांस्टेंट आ जाती है। तो अगर हम इसको यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो PV इक्वल्स टू K। PV क्या चीज़ है, प्रेशर एंड वॉल्यूम, यहाँ पे प्रेशर एंड वॉल्यूम इन दोनों का क्या था 20 मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड के क्या है, कांस्टेंट 1000 हमारे पास आ गया है, हमें उसका ढूंढना है। वो इक्वेशन लग रही है P1 इक्वल्स टू B1 इक्वल्स टू P2 P2, बट यहाँ पे कांस्टेंट हमें ढूंढना है, ठीक है। के जो है मैं के ढूंढना है यहाँ पर, और वो क्या है, वॉल्यूम ढूंढना है हमें, तो मैं यहाँ पे वॉल्यूम ढूंढना है, मैं छोटा लिख दूँ, ओके, एक्स मैंने रख दिया हमारा वॉल्यूम यहाँ पे, ओके। देन व्हेन आई सी इट कि मैं ऑब्वियसली यहाँ पे होगा, तो मैंने ये दो काट दिए 2 10 नहीं 20 राइट, 0 0 एंड 200 एंड इक्वल्स टू एक्स। तो मेरा जो क्या कहते हैं, मेरा जो वॉल्यूम आया है वो 200 आया है, 200 सेंटीमीटर आया है, ठीक है, ऊपर वाला। जैसे कि अब मेरा ये जो ड्रॉपलेट ऊपर गया तो उसका इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ का हमने देखा हमारा प्रेशर ज़्यादा था, वॉल्यूम कम था, यहाँ पे हमारे पास प्रेशर कम था तो हमारा वॉल्यूम यहाँ पे ज़्यादा हो गया, विच इज़ 200 सेंटीमीटर क्यूब, right? So I hope this example is way clear. So I hope you guys like this video. In my next video we will definitely discuss the other 3 laws, and I think my video got like a great big, and yeah, this was like easy to explain. And if you guys still have any confusions and anything, you guys can just message me, or like you can like chat right in the chat box. Yeah, so I just got like as many examples I can get